And how we will define the emissivity? Emissivity is the energy that a particular black body or a particular gray surface is emitting per unit time, per unit area. कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया जितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इमिट करेगी, दैट क्वांटिटी is known as emissivity of the test plate surface. Next one is the introduction part. All the bodies emit and absorb their thermal radiation to and from surrounding. जितनी भी बॉडीज हैं, सारी की सारी बॉडी कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग by the process of radiation. The rate of thermal depends upon the temperature of the body. जो rate of thermal radiation, जो thermal energy आपकी transfer हो रही है from one body to another body or from body to surrounding or from surrounding to body, that will depend on the temperature of the body. Thermal radiations are electromagnetic waves and they do not require any medium for propagation. जो थर्मल रेडिएशन के थ्रू एनर्जी इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज कंप्लीटली बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट. नेक्स्ट, व्हेन थर्मल रेडिएशन स्ट्राइक ए बॉडी, पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी. जब भी किसी बॉडी से कोई थर्मल रेडिएशन स्ट्राइक करेगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा. द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिविटी. यानी कि जो भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिविटी रो. द फ्रैक्शन of incident energy absorbed by surface is called absorptivity alpha, and the fraction of energy transmitted is called transmissivity tau. The surface which absorbs all the incident radiation is known as a black surface. So this chapter we have also discussed in the chapter number 5, what is absorptivity, what is reflectivity, and what is transmissivity, and what is a black body. If a body absorbs all the radiation incidenting upon it, then it is known as a black body. So for a black surface, if we will consider rho plus alpha plus tau is equal to 1. The radiant flux emitted from the surface is called emissive power E. यानी जो भी पर्टिकुलर रेडियंट फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, which is emitting from a surface is known as emissive power. The emissivity of a surface is the ratio of emissive power of a surface to that of the black surface at the same temperature. If we define the emissivity epsilon, this epsilon is E upon EB, where E is the emissivity or emissive power of a surface and EB is the emissive power of a black surface, and epsilon is the ratio of these two. Then this is the further description of the apparatus. The apparatus uses comparator method for determining the emissivity of the test plate. यानी जो कंपैरिजन मेथड है, जिसको हम कंपैरेटर मेथड बोल सकते हैं, उस पर्टिकुलर मेथड को हम यहाँ पर यूज करेंगे टू फाइंड आउट द एमिसिविटी ऑफ द टेस्ट प्लेट. इट कंसिस्ट ऑफ 2 एल्यूमिनियम प्लेट. इस पर्टिकुलर एपरेटस में 2 एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, इक्वल फिजिकल डायमेंशन. दोनों प्लेट्स की जो डायमेंशन है वो इक्वल है. माइका हीटर्स आर प्रोवाइडेड इनसाइड दी प्लेट्स. जो प्लेट्स हैं उनके अंदर हमने माइका हीटर्स लगा रखे हैं सो दैट दे विल स्टार्टिंग हीटिंग अप. द प्लेट्स आर माउंटेड इन एन इनक्लोजर टू प्रोवाइड अनडिस्टर्ब्ड सराउंडिंग. दोनों प्लेट्स को एक बॉक्स के अंदर, एक इनक्लोजर के अंदर हम क्या करेंगे, माउंट कर देंगे सो दैट सराउंडिंग विल नॉट डिस्टर्ब. One of the plate is blackened outside for use as a comparator.
एक जो प्लेट है उसको बाहर की साइड से क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, क्योंकि हम उसको एज ए कंपैरेटर यूज कर रहे हैं. अनदर प्लेट इज हैविंग न्यूट्रल सरफेस फिनिश, और जो दूसरी प्लेट है उसको हम क्या रखेंगे, न्यूट्रल सरफेस फिनिश रहेगी उसकी. इनपुट टू हीटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेपरेट dimmer states. If we are inputting to heater can be controlled by separate dimmer states. Heaters input are measured on common emitter and voltmeter. जो हीटर के इनपुट्स हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं ऑन ए कॉमन एमीटर एंड वोल्टमीटर पर. वन थर्मोकपल इज फिटेड ऑन सरफेस ऑफ ईच प्लेट to measure the surface temperature with digital temperature indicator. एक थर्मोकपल फिटेड होता है प्रत्येक प्लेट की सरफेस पर, जिससे हम उस सरफेस का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर. नेक्स्ट वन इज बाय एडजस्टिंग इनपुट टू द हीटर. जो हीटर को हम इनपुट दे रहे हैं उसको अगर हम एडजस्ट करते हैं, बोथ द प्लेट आर ब्रॉट टू द सेम टेम्परेचर. दोनों ही प्लेट को हम क्या करते हैं, बारी बारी से सेम टेम्परेचर पर लेके आते हैं, सो दैट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन लॉसेज फ्रॉम बोथ द प्लेट्स आर इक्वल. जिससे कि जो कंडक्शन और कन्वेक्शन लॉसेज की वजह से दोनों जो प्लेट हैं उनमें जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू कंडक्शन और कन्वेक्शन, दैट विल बी इक्वल. एंड डिफरेंस इन इनपुट इज ड्यू टू डिफरेंट इमिसिविटी. दोनों जो बॉडी हैं उनकी इमिसिविटी अलग अलग है, इसीलिए जो भी हीट का डिफरेंस आएगा, जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, दैट विल बी ड्यू टू इमिसिविटी. होल्स आर प्रोवाइडेड एट ब्लैक साइड बॉटम एंड एट द टॉप ऑफ enclosure फॉर नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ एयर ओवर द प्लेट्स. द प्लेट इज प्रोवाइडेड विथ परप्लेक्स acrylic sheet at the front. And now next one is the experimental procedure. First step is blacken one of the plate with the help of lamp black. Next one is keep both the diameter knob at 0. दोनों diameter knob को 0 पे नोट डाउन करेंगे. Next one is insert the supply pin top in the socket. जो सप्लाई पिन है उसको सॉकेट में इंसर्ट करेंगे एंड स्विच ऑन द सप्लाई, सप्लाई को ऑन करेंगे. स्विच ऑन द मेन, स्विच ऑन द पैनल. जो मेन स्विच है उसको हम पैनल से ऑन करेंगे. कीप द मीटर सेलेक्टर स्विच एट द ब्लैक प्लेट साइड. और जो मीटर सेलेक्टर स्विच है उसको ब्लैक प्लेट वाली साइड में रखेंगे. नेक्स्ट वन इज एडजस्ट डिमर ऑफ ब्लैक प्लेट so that around 1110 to 1120 volts are supplied to the black plate. Next one is now switch the meter selector, switch on other side. Next one is adjust test plate voltage slightly less that of the black plate. Next one स्क्रीन गई सर. Next one is the check the temperature and adjust the dimmers so that temperature of both the plates are equal and steady. Normally very minor adjustment are required for this. दोनों जो प्लेट हैं उनके टेम्परेचर को इक्वल करेंगे by adjusting the dimmers. Note down the reading after the plate temperature रीच स्टडी स्टेट. जैसे ही दोनों प्लेट के टेम्परेचर स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंचेंगे उनका टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे. एंड दिस नेक्स्ट वन इज द टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस. द प्रेजेंट सेटअप इज डिजाइन टू मेजर द एमिसिविटी ऑफ टेस्ट प्लेट. जो प्रेजेंट सेटअप हम स्टडी कर रहे हैं ये डिज़ाइन है टू मेजर द एमिसिविटी ऑफ द टेस्ट प्लेट. द टेस्ट प्लेट comprises of a mica heater sandwiched between two circular plates. Black plate is identical with test plate but its surface is blackened. यानी जो ब्लैक प्लेट है उसको हम क्या करते हैं, वो आइडेंटिकल होती है टेस्ट प्लेट के, बट इट्स सरफेस इज ब्लैकन. बट इसकी सरफेस को हम क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं.
एज ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज डायमेंशंस एंड टेम्परेचर आर इक्वल, जो दोनों ही सरफेसेज हैं, अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, डायमेंशन और टेम्परेचर इक्वल होते हैं, हीट लॉसेज फ्रॉम बोथ प्लेट्स विल बी सेम एक्सेप्ट रेडिएशन लॉस। दोनों प्लेट से जो हीट लॉस होंगे, चाहे वो आपका कंडक्शन के थ्रू हो चाहे वो कन्वेक्शन के थ्रू हो, वो सेम है एक्सेप्ट रेडिएशन, बिकॉज दोनों ही प्लेट के हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट, उनकी इमिसिविटी डिफरेंट है। हेंस द इनपुट डिफरेंस विल बी ड्यू टू टेम्परेचर इन इमिसिविटी। Both plates are supported on individual brackets in an enclosure with one side glass to ensure steady atmospheric condition। दोनों ही प्लेट को हम क्या करते हैं, एक ग्लास के अंदर एक पर्टिकुलर इंक्लोजर के अंदर फिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो एनवायरनमेंट है उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। टेम्परेचर सेंसर्स आर प्रोवाइडेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ईच प्लेट एंड सराउंडिंग। टेम्परेचर सेंसर्स इसमें प्रोवाइडेड होते हैं सो दैट वी कैन मेजर the temperature of each plate and surrounding। Electric supply is given to heater through separate variables so that temperature of both can be kept equal and assured with digital voltmeter and digital ammeter। जो टेम्परेचर है, जो वोल्टमीटर वोल्टेज है और जो करंट है उसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीटर्स। Learning objective, determination of emissivity of a test plate, study the variation of emissivity of test plate with absolute temperature। Next one is the required operations, electric supply at least one phase to 20 volt AC चाहिए और 4 एम्पियर की करंट चाहिए। And we required a table for setup support and these are the technical specification। test plate diameter क्या है 160 mm approx और जो ब्लैक प्लेट डायमीटर भी क्या है 160 mm एक्सप्रोस। दोनों प्लेट का डायमीटर आपको दे रखा है D1 D2 विच विल बी यूटिलाइज टू फाइंड आउट द एरिया π/4d²। हीटर नंबर 2 नाइक्रोम वायर का हीटर है, 1 ईच ऑफ टेस्ट प्लेट एंड ब्लैक प्लेट। दो हीटर लगे हुए हैं, एक नाइक्रोम वायर का हीटर है, ठीक है, दोनों ही क्या आपके नाइक्रोम वायर के हीटर हैं और दोनों प्लेट पर लगे हुए, एक टेस्ट प्लेट पर लगा हुआ है और एक कहाँ लगा हुआ है ब्लैक प्लेट पर, जिससे कि हम उसका एवरेज टेम्परेचर मेजर कर सकें। Cabinet to accommodate the slab assembly with front window of glass acrylic। एक कैबिनेट बना हुआ है जिसके अंदर जो स्लैब की असेंबली है वो रखी हुई है, ठीक है, जिसमें उसका फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है। द होल सेटअप इज इंजीनियसली डिजाइन एंड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड ऑन ए पाउडर कोटेड रिजिड स्ट्रक्चर। जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है बच्चों उसको हमने क्या कर रखा है, एक पाउडर कोटेड रिजिड स्ट्रक्चर के ऊपर रखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल पैनल। तो डिजिटल वोल्टमीटर की रीडिंग लगभग 0 से 300 वोल्ट के बीच में, डिजिटल एमीटर की रीडिंग 0 से 2 के बीच में, DPDT सेलेक्टर स्विचेस यानी फॉर डिजिटल वोल्टमीटर एंड डिजिटल एमीटर के लिए जो वेरिएशन है वोल्टेज का वो कितना है 0 से लेकर 230 वोल्ट तक। करंट कितनी होनी चाहिए 2 एम्पियर तक। 1 ईच ऑफ टेस्ट प्लेट एंड ब्लैक प्लेट। और डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर 0 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड विद मल्टी चैनल स्विचेस। और यहाँ पर देखिए टेम्परेचर सेंसर्स RTD PT 100 टाइप और स्टैंडर्ड मेक ऑन ऑफ स्विचेस मीन्स इंडिकेटर ETC। एंड दिस इज द डायग्राम विच यू विल सी शॉर्टली। ये दोनों प्लेट है, ये टेस्ट प्लेट है और ये इस प्लेट को हमने क्या कर दिया है ब्लैक प्लेट है। दूसरी वाली प्लेट क्या आपकी ब्लैक प्लेट है। यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट्स दिखाई दे रहा है इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर सेंसर्स लगा हुआ है जो आपका टेम्परेचर मेजर करने के काम में आएगा। यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है जो आपका टेम्परेचर मेजर करने के काम में आएगा। और ये आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यहाँ पर वोल्टेज दिखाई देगा पहले खाने में, फिर आपको करंट मिलेगा, अलग अलग भी हो सकते हैं डिफरेंट, और फिर आपको टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा जो कैलकुलेशन हम करेंगे। और ये जो टिप आपको दिखाई दे रही है यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे और ये डिमर से, इन डिमर से हम इनकी रीडिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बीच में लाइट है ये ऑन ऑफ के लिए दिखाएगी, आपको शो करेगी। और बाकी चीज़ें अभी मैं आपको ले चलूँगा प्रैक्टिकली। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। इमिसिविटी कैसे निकालेंगे, EB की वैल्यू क्या लेंगे, इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी क्या लेंगे 1 लेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेंगे 5.67 × 10⁻⁸। ये -8 है 10⁻, ठीक है। ये अब देखिए रीडिंग्स कैसे आएंगी, 1 2 3 रीडिंग ले सकते हैं। जैसे पहला ब्लैक प्लेट के लिए P1 की रीडिंग चाहिए, I1 की रीडिंग चाहिए और T1 की रीडिंग चाहिए, TB, B फॉर ब्लैक सरफेस।
तो यहाँ पर आपको वोल्टेज फिक्स कर देंगे। जैसे मान के चलिए आपने फिक्स किया यहाँ पर 50, इफ़ यू विल फिक्स द वोल्टेज एज 50, तो हियर 50, नेक्स्ट वन इज द 50। आफ्टर 10 मिनट अगर आप दोबारा मेजर करते हैं तो भी क्या मेजर करना है आपको 50, और नेक्स्ट वन इज ऑल्सो द 50, और 50 के करस्पॉन्डिंग जो करंट आ रही है आपकी, करंट 0 से 2 के बीच में आएगी, अप्रॉक्स वैल्यू डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, अगर एग्जैक्ट पता चल जाए तो ये टेम्परेचर हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल या थर्मोमीटर की सहायता से। सिमिलरली जो टेस्ट प्लेट है उसकी रीडिंग लेंगे, अभी बताएंगे कैसे लेनी है, V2, I2, T2। ठीक है, 2 रीडिंग ले सकते हैं, 1 रीडिंग ले सकते हैं, बट कम से कम एटलीस्ट 2 लेके एवरेज वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 3 लेते हैं तो ऑन एवरेज वैल्यू अच्छी आएगी। और T3 किसको डिनोट करेगा, एम्बिएंट टेम्परेचर को डिनोट करेगा। तो बच्चों यहाँ से अगर आप निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, EB देखो, EB, ठीक है, EB माइनस QB माइनस QS, QB माइनस QS अपॉन में सिग्मा A TS की पावर 4 माइनस TD की पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका QB माइनस QS, QB माइनस QS अपॉन में सिग्मा A TS की पावर 4 माइनस TD की पावर 4। क्योंकि जब अगर हम निकालेंगे यहाँ से EB की वैल्यू फाइनली, तो QB क्या रहेगा, VB इंटू में IB, QS क्या रहेगा, VS इंटू में IS। एरिया आप निकाल ही लोगे, π/4d², डायमीटर आपको दे रखे, TS आपको पता है, TD आपको पता है, और ये आपके नोमेनक्लेचर से। और विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द इमिसिविटी। ये सारे आपको यहाँ लिखने हैं पूरे, और ये बच्चा तो जानता है शायद। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ